کیا ورشپ کے ذریعے خداوند ہمارے دلوں کی زمین جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. آپ خداوند خدا بارش تیری ہے کہ تو ہم سبوں سے ہم کلام ہو خداوند خدا. تو تیرے خادم کو تیرے خون کی قدرت پر ڈپ کرتے ہیں خداوند خدا. آج کی آواز ہم سبوں کے لیے خداوند خدا باعث سے برکت ٹھہرے خداوند خدا. اور یہ تیرا کلام کثرت سے ہماری زندگیوں میں خداوند خدا کام کرے. اور اپنے خادم کو چھو خداوند خدا جب تک تیری آواز کو ہم سبوں تک پہنچائے. ان کے ہونٹوں اور زبان کا ذمہ لینا خداوند خدا. مکمل طور پر اپنے پاک روح القدس کی لپیٹ میں لینا تاکہ سارا جلال صرف اور صرف تیرے نام کو ملے خداوند خدا. تاکہ تیرا خادم جو بھی آواز ہم تک پہنچائے خداوند خدا اس کے وسیلے سے ہم نہ صرف خود کو خداوند خدا بلکہ بہتوں کو خداوند خدا تیری بادشاہی میں داخل کرنے والے بن سکے. اور سارا جلال خداوند یسوع تیرے نام کو ملے. ہم سبوں کو سننے والے کان، قبول کرنے والا دل اور سمجھنے والا روح عطا کر تاکہ ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. یسوع کے نام سے آمین آمین. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. خداوند یسوع المسیح میں آپ سب کو سلام. خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں جو ہر روز ہمیں جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور اپنی تمجید کے لیے، اپنی ستائش کے لیے ہمیں اکٹھا کرتا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت دن کے لیے، آج اس وقت کے لیے جو ہم خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ کلام کو سیکھنے کو ہیں. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے پاک کلام میں سے زبور نویس، زبور نمبر 96 اور اس کی ہم 7ویں آیت خداوند کے کلام سے پڑھیں گے. زبور نمبر 96 اور اس کی 7ویں آیت خداوند کے کلام سے پڑھیں گے. کلام خدا میں لکھا ہے، اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید اور تعظیم کرو. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آمین. آج جس ٹاپک پر، جس آج ہم مضمون پر، جس آج ہم پیشن پر ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے وہ ہے، ہم صرف خدا ہی کی عبادت کیوں کریں. ہم صرف خدا ہی کی عبادت کیوں کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ خداوند کے کلام میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید اور تعظیم کرو. اگر ہم اس کی پچھلی آیات کو جب پڑھیں 5ویں سے تو وہاں پر خوبصورت باتیں خدا کے کلام میں لکھی ہیں. وہ کیا ہیں جی؟ پڑھیے گا جی. اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہے. سب ہم کیوں خدا ہی کی عبادت کریں؟ کیونکہ سب قوموں کے معبود کیا ہے؟ محض بت ہیں. لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا. ہاں، خداوند نے کیا کیا؟ آسمانوں کو بنایا. ہم اس لیے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. عظمت اور جلال اس کے اب خدا کے حضور میں عظمت اور جلال کیا ہے؟ خدا کے حضور میں ہے. قدرت اور جمال اس کے مقدس. پریز گاڈ. قدرت اور جمال اس کے مقدس میں ہے. ہم کیونکہ خدا کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا ہی تمجید کا لائق ہے. دنیا کے سارے معبود جس کو دنیا مانتی ہے، ہر شخص نے، ہر دنیا کے اس چھوٹے بڑے آدمی جتنے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، وہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں. لیکن ہم صرف اور صرف خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہی نے ہم کو بنایا اور ہم اس کے ہاتھ کی کیا ہے؟ کاراگری ہیں. جب ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں تو ہم خدا ہی کی عبادت کریں گے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 11ویں تا 14ویں آیت میں ہم واضح طور پر خدا ان کے کلام سے پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے گا جی.
5वां बाब, हाँ जी 11वीं आयत से, मुकाशफा 5वां बाब उसकी हाँ जी। 11वीं आयत में हाँ, लिखा है, 11वीं और आयत जब से। मैंने निगाह की हाँ, जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों हाँ, उस तख्त उन जानदारों को और बुजुर्गों के गिरदा और गिर्द बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी बहुत से फरिश्तों की आवाज क्या हुई? सुनी, जिनका शुमार जिनका शुमार लाखों लाखों और करोड़ों था, और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज से कहते प्रेज थे गॉड। और वो बुलंद आवाज से क्या कहते थे? कि जिबा किया हुआ बर्रा ज़िबा किया हुआ बड़ा ही कुदरत ही कुदरत और दौलत और दौलत और हिकमत और हिकमत और ताकत और ताकत और इज्जत और इज्जत और तमजीद और तमजीद और हमद के लायक है। और हमद के लायक है। जब यूहन्ना आरफ मुकाशफा की किताब को लिख रहे थे तो उसको जब आसमान पर खुदा उसको लेके गया, खुदा ने जब उसको आसमान पर नज़ारा दिखाया तो वहाँ पर लिखा है कि हज़ारों करोड़ों फरिश्ते जो है वो उसके हुजूर में खड़े थे और वो खुदा की हमद और सताइश हम दो तारीफ कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे ज़बा किया हुआ ज़बा बड़ा ही किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत प्रेज गॉड और ताकत और इज्जत और तमजीद के लायक है, क्योंकि वो ही है जो ज़िबा किया हुआ बड़ा। पहले हम देखते हैं कि शरीयत के दौर में हम लोग क्या देखते हैं कि जब गुनाह इंसान करता तो हम लोग बैलों और बछड़ों को देखते हैं कि ज़िबा किया जाता था। लेकिन जब इंसान का उस ज़िबा किया हुए बड़े से या बछड़े से निजात ना मिल सकी, रिहाई ना मिल सकी, तो फिर खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। उसने आकर हम सब के लिए कुर्बान हुआ, वो हमारे लिए ज़िबा हुआ और वो उसने हम सब की खातिर अपनी ज़िंदगी अपनी जान को जो है वो हम सब के लिए कुर्बान किया, तब जाकर हमारी मुखलसी हुई। हम इसलिए खुदा की तमजीद और उसकी सताइश करते हैं। आइए हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि खुदा ही हमें इसलिए इसके खालिक किया, चुना और छुड़ाया और बुलाया है। खुदा ने हमें चुना है, बुलाया है, छुड़ाया है। आइए खुदा उनके कलाम में से जिसाया उसका 43वां बाब और उसकी 7वीं और 21वीं आयत पढ़ेंगे। जिसाया, क्योंकि खुदा ही ने हमें जो है वो चुना है, खुदा ही ने हमें छुड़ाया है, खुदा ही ने हमें जो है वो मुखलसी बख्शी है, खुदा ही ने हमें जो है वो इस काबिल बनाया, खुदा ने हमें ये साया 43वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया। हाँ देखें, खुदा ने क्या किया है? अपने जलाल के लिए क्या किया है? खलक किया है, बनाया है, क्रिएट किया है, तैयार किया है। जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैं ही ने बनाया। हाँ प्रेज गॉड, जिसे मैं ही ने क्या किया? बनाया है। जब खुदा ही ने हमें जो है वो खलक किया है, क्रिएट किया है, बनाया है, तैयार किया है, तो हम खुदा ही की तमजीद और सताइश करेंगे। और आगे जब हम खुदा उनके कलाम से बढ़ें तो वहाँ पर जो है वो जब हम पैदाइश की किताब देखते हैं, पैदाइश 17 बाब उसकी पहली आयत से जब हम देखें तो वहाँ पर जो है वो इस बात को हमें जो है वो और ज़्यादा जो है वो वाज़ेह हो जाता है। 17 बाब, हाँ जी, पहली आयत से पढ़िएगा। पैदाइश 17 बाब उसकी पहली आयत में खुदावन के कलाम में लिखा है, जब अब्राम 99 बरस का हुआ। हाँ, जब अब्राम क्या हुआ? 99 वर्ष का हुआ। तब खुदावन अब्राम को नजर आया। हाँ, तब खुदा अब्राम को क्या हुआ? नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ। हाँ, क्या हूँ मैं? खुदाए कादिर हूँ, खुदाए क्रिएटेड हूँ, खुदाए क्रिएट हूँ, बनाने वाला हूँ। तू मेरे हुजूर में चल
हाँ, कहता तुम और मेरे कामिल हुजूर हो। में, हाँ, हम खुदा के साथ जब चलेंगे, खुदा की तमजीद करेंगे, तो खुदा फिर हमें जो है वो तैयार करेगा तमजीद के लिए, सताइश के लिए, प्रस्तिश के लिए। हाँ और जी। मैं अपने और तेरे दरमियान और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा अहद बांधूंगा। और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। हाँ, खुदा ही ने हमें जो है वो बढ़ाना है। तब अब्राहम सरनगू हो गया हाँ, और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया। अब वो खुदा के हुजूर झुक गया, तमजीद करने लगा, खुदा की सताइश करने लगा। तो फिर क्या हुआ? खुदा ने उससे कलाम किया। हाँ, खुदा ने उसके साथ क्या किया? हम कलाम हम होकर कलाम फरमाया होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है हाँ, मेरा अहद तेरे साथ है। और अहद उसके साथ क्या कर रहा है? और तू बहुत कौमों का बाप होगा। Praise God, तो सब बहुत सारी कौमों का क्या होगा? बाप होगा। बाप होगा। और तेरा नाम फिर अब अब्राम नहीं उस वक्त कहलाएगा। तक उसके हाँ एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ, लेकिन खुदा उसके साथ अहद कर रहा है, वादा कर रहा है उसके साथ, जो है वो एक तरह से वादा कर रहा है, उसके साथ आने वाली बातों को उसके साथ अहद में बांध रहा है। और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा। देखें, अब उसका नाम जो है वो उस वक्त से अब्राम ना कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम तेरा होगा। नाम अब्राहम होगा, यानी कि कौमों का बाप होगा। क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। अब खुदा के हजूर में जो है वो बंदा रासबाज था, कामिल था, खुदा ने उसको बनाया था, खुदा ने उसको जो है वो क्रिएट किया था, तो खुदा उसके बारे में जानता था। खुदा जब उसके साथ हम कलाम होता है, खुदा जब उसके पास आता है, तो खुदा उसको कहता है कि तुझे मैं बहुत सारी कौमों का बाप बनाऊंगा। जब हम खुदावंद के कलाम में देखें तो खुदा ने हमें जो है वो बुलाया है, छुड़ाया है, खुदा ने हमें क्रिएट किया है, हम खुदा ही की प्रस्तिश करते हैं। जब हम देखें हम खुदा ही की क्यों इबादत करते हैं, जब हम खरूज उसका 20वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम अपने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच की बीमारियों को दूर करेगा। हम इसलिए खुदा की इबादत करते हैं, हम इसलिए खुदा की तमजीद करते हैं, क्योंकि वो ही इबादत और प्रस्तिश के लायक है। और उसका वादा है कि जब हम उसकी इबादत करेंगे, जब हम उसकी तमजीद करेंगे, जब हम उसकी सताइश करेंगे, तो वो हमें हमारे घराने में क्या होगा, हमारे किचन के निज़ाम को, हमारे रोटी और पानी को बरकत देगा और हमारे अंदर से बीज की बीमारी को दूर कर देगा। हम इसलिए खुदा की इबादत और खुदा की तमजीद करते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था, क्यों हम खुदा की इबादत करें, इसलिए खुदा की इबादत हम करते हैं क्योंकि उसने हमारे रोटी और पानी को बरकत देता है, हमारे बीज की बीमारी को दूर करता है। खुदा जिस कलाम के सवाब से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। खुदा हूँ और सलाम गुजारी के लिए दुआ करेंगे। अपनी तरफ से दिखाएं और हम दुआ करें। खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से प्यारे खुदा हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदा आसमानी बाप, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हम सबको ज़िंदा पे ज़मीन पे रखा। और प्यारे खुदा बाप आज का कलाम प्यारे खुदा जो तूने हम सब की ज़िंदगियों में ठहराया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे पिता। तूने फरमाया प्यारे खुदा बाप मैं तेरे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा। प्यारे खुदावंद हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, हमेशा तू हमारी ज़िंदगियों में अपना जलाली काम करता है, बरकत देता है। प्यारे खुदावंद खुदा तो अपने खादिम को और तमाम प्यारे खुदावंद खुदा तेरे बेटियां बेटियों के लिए प्यारे खुदावंद बरकत चाहती हूँ। प्यारे खुदावंद खुदा जो तेरे पाक कलाम को खुदावंद हमने सीखा है, प्यारे खुदावंद खुदा तो हम सबको बरकत देना है। ज़िंदा आसमानी बाप हम घटे तो बड़े, तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। प्यारे खुदा बाप हम छुपे तो नज़र आए। प्यारे खुदा आज की इबादत तुझे पसंद आए। प्यारे पिता हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी निगहबानी हिफाजत कर। यीशु अल मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इसी तरफ खुदा की जोड़ी में आगे बढ़ेंगे
اور گیت گائیں گے. اسی کے دوران اپنے ہدیہ دانے خدا کو جو پیش کریں گے. گیت میں رہنمائی بھائی کامران کرے گا. رہے گا نام سدا تیکر مسیح کا، رہے گا نام سدا تیکر مسیح کا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا. سب لوگ پاون اس کو برکتاں، سب لوگ پاون قوم آؤزیاں دھنباد گاون، قوم آؤزیاں دھنباد گاون. جو اسرائیلیاں رب کا ہے، جو اسرائیلیاں رب کا ہے، عجائب کم کرتا دھن سدا ہے، عجائب کم کرتا دھن سدا ہے. خدا کا پاک نام ہے شان والا، خدا کا پاک نام ہے شان والا، سدا تیکر مبارک کو رہے گا، سدا تیکر مبارک کو رہے گا. بزرگی ہوتی ہے دنیا سے ساری، بزرگی ہوتی ہے دنیا سے ساری، کہو آمین من پھر دوسری باری، کہو آمین من پھر دوسری باری. ہالیلویا، پریز گاڈ. جو وقت ہے ہماری درخواست کا، آپ کی جو بھی درخواست ہے اس کے لیے بعد میں دعا کی جائے گی. ہاللویا. کسی اور نے؟ میری طرف سے سب کو سلام. السلام. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں بیٹی سحر کے لیے، جو خداوند نے ان کو بیٹی عطا فرمائی. وہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کی جائے کہ خداوند اس کو صحت تندرستی بخشے. اور ہماری کلیسیا کے لیے دعا کی جائے، خداوند اس کو ان سب کو برکت دے. اور آج کی عبادت کے لیے اور آج کے پاک کلام کے لیے آمین. ٹھیک ہو گیا. اور ہم سب کھڑے ہو جائیں گے یہاں. اور ہم دعا کریں گے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم نے عبادت کی ہے. ہم چرچ کی کنسٹرکشن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں روپیہ پیسہ مہیا کرے تاکہ چرچ کی کنسٹرکشن ہو. اور تمام ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری پوری ٹیم کو جو چرچ کی خدمت کر رہی ہے سب کو بڑھائے اور برکت دے. آمین. اور ہم پڑھیں گے تیزور پڑھیں گے بھائی کامران کے ساتھ مل کر. ہم سب مل کر تیس بور کو پڑھیں گے. خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بلکہ خواہ
मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्याला लबरेज होता है। मेरा प्याला लिबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। हम तमाम दरख्वास्तों के लिए, आज की इबादत के लिए दुआ करेंगे। तो मेरे हर में खातम पास्टर मुमताज़ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तहे दिल से मशकूर हैं आज की इस पाक इबादत के लिए। इस पाक दिन में खुदावंद आपने हमें बरकत दी ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की हजूरी में आएँ। और खुदावंद आपके बेटों और बेटियों ने आपकी हजूरी में मुख्तलिफ दरख्वास्तों को पेश किया है। ऐ बाप, आपकी बेटी एल्डर फरजाना के लिए दुआ करता हूँ, अपनी बेटी को बरकत दीजिए। और खुदाए कदूस शहर के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद अपनी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए। और जो खुदावंद आपने उसे बेटी दी है खुदावंद, उसके लिए दुआ करता हूँ, जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती को मांगता हूँ ताकि खुदावंद आपकी बेटी हमेशा शादमानी हासिल करे। और खुदावंद कदूस दुआ करता हूँ आपकी बेटी रानी के लिए, अपनी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती दीजिए, बरकत दीजिए। भाई कामरान के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद अपने बेटे को बरकत दीजिए ताकि वो इसी तरह आपकी वर्शिप करता रहे। और खुदावंद एल्डर आरफ के लिए, पास्टर रफाकत के लिए दुआ करता हूँ, हम इसी तरह मिलकर खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ते जाएं। और तमाम डीकन्स एल्डर्स के लिए दुआ करता हूँ जो चर्च में हमारे साथ खिदमत करते हैं। ऐ बाप, सबको अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखिएगा। और खुदावंद आज की ये इबादत आपकी हजूरी में मकबूल ठहरे। और खुदावंद चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद अपने इलाही मंसूबा के मुताबिक वसाइल मुहैया कीजिए ताकि हम चर्च को तमीर कर सकें। और खुदावंद वहाँ बहुत सारे लोग आपके हमद में गा सकें और आपके घर में आएँ। और खुदावंद दुआ करते हैं पूरी टीम को खुदावंद बरकत दीजिए, हाज़िर जमात को बरकत दीजिए ताकि हम इसी तरह मिलकर खुदावंद की इबादत करें और यसू अल मसीह से ढेरों बरकत पाएं। खुदावंद आज की ये इबादत आपकी हजूरी में मकबूल ठहरे ताकि इस इबादत के वसीला से हम बरकत पाएं। आज जितनी जानों ने खुदावंद आपकी हजूरी में हदिया जात को पेश किया है, इनके तमाम हदिया जात को अपनी हजूरी में कबूल कीजिएगा। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ मांगेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात यही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवजा करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।